پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے، جب تک عوام فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے دھواں دھار خطاب، کہا دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مٹھی بھر دہشت گرد ملک کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی دنیا میں پاکستان کی نمائندگی سے فخر کریں۔ پاکستان کے زرعی گریجویٹس آج اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان چین کے تجربات سے استفادہ حاصل کرے گا۔ پاکستانی طلباء بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ پروگرام میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان کے بچے شامل ہیں۔ نوجوانوں نے پاکستان کو ترقی سے ہمکنار کرنا ہے۔ زراعت کے 1000 فارغ التحصیل طلباء کو اعلیٰ تربیت کے لیے اسکالرشپ پر چین بھیجنے کا منصوبہ۔ وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر طلباء کو تربیت کے لیے چین بھیجا جا رہا ہے۔ حکومت نے ہمیشہ زراعت کے شعبے کو ترجیحات پر رکھا۔ چین نے ٹیکنالوجی اور ریسرچ سے زراعت کے شعبے میں ترقی کی۔ چین نے زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ پاکستان کا پہلا اور منفرد انوائرمنٹ پروٹیکشن اسکواڈ فعال ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ فورس کے مختلف اسکواڈ اور ماحولیات کی تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ ای بائکس اسکواڈ ایکو فرینڈلی یونٹ کے طور پر کام کرے گا۔ گرین اسکواڈ اربن ایریا میں اینٹی پلاسٹک کمپین، ڈسٹ اینڈ ڈینگی کنٹرول کا پروگرام سنبھالے گا۔ بلو اسکواڈ آبی ذخائر کی حفاظت کرے گا۔ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام میرا خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ پہلی بار پنجاب حکومت نے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق پالیسی بنائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہماری فضا بری طرح متاثر ہوئی، اسموگ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑتے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ فورس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ عوام جس فضا میں سانس لیتے ہیں اسے صاف بنانا ہماری ترجیح ہے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام وقت کا تقاضا تھا۔ پنجاب حکومت ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ماحولیاتی تحفظ فورس ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عزم کی عکاس ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ماحولیاتی تحفظ کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی۔ پہلی بار پنجاب میں فیول ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے ریمانڈ سے متعلق اپیل پر سماعت۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا باقی ہے۔ وکیل سلمان صفدر کی بانی سے ہدایات لینے کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے چلے جائیں، کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بریت کی درخواستوں پر جلد سماعت کرنے کی استدعا۔ درخواستیں بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے دائر کی گئیں۔ موقف اختیار کیا گیا۔ درخواستیں 28 جنوری کے بعد سے زیر التوا ہیں، تاحال ان پر کوئی سماعت مقرر نہیں کی گئی۔ تاخیر ناانصافی کو جنم دیتی ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ۔ جسٹس علی باقر نجفی نے بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل اور سینئر وکلاء بھی شریک ہوئے۔ وزارت قانون نے جسٹس علی باقر نجفی کی تعیناتی کا گزشتہ روز نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔
बलूचिस्तान में साहिली पट्टी की रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए पाक बहरिया ने एक और संगे मील और माड़ा मिपनी NS दरमाशाह में जदीद सहूलतों से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह हो गया। नए ब्लॉक में जदीद ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, ICU, गायनी यूनिट और शोबे अतफाल शामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PNS दरमाशाह जदीद तरीन सहूलतों के साथ मकामी अफराद की खिदमत जारी रखेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल का 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। कोयटा में 18 अप्रैल को इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अख्तर मेंगल का मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का ऐलान। BNP ने गुज़श्ता कई रोज से लकपास पर धरना दे रखा था। धरना खत्म करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने कई बार मुज़ाकरात भी किए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान की आवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। कच्ची कैनाल के दूसरे मरहले के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बलूचिस्तान के लिए रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी। तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात को मुफ्त बैग देने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत ने किताबों की मुफ्त फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। पेरेंट टीचर्स काउंसिल का सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए करने का भी फैसला हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI के विजन के मुताबिक तालीम के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। सियासत में वक्त का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। सियासी रोजा रखा हुआ है, वक्त आने पर खोलूंगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ये रोजा तवील नहीं हो सकता, 17 बार वजीर रहा हूं, मालूम है रोजा कब खोलना है। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। हेलमेट ना पहनने और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 11,276 मोटरसाइकिल जब्त। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ट्रैफिक पुलिस ने 9 से 16 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 193 डंपर्स की फिटनेस और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ वर्जियों पर भी गाड़ियां जब्त हुई। वजीर आला सिंह की हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। PTI उम्मीदवार की हिमायत में तमाम जमातें इकट्ठी हो गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ओवरसीज वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। हमें डिजिटल दुनिया की तरफ बेहतर अंदाज में जाना है। मसनूई जहानत एक उभरती हुई फील्ड है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा इदारों में बेहतर ताउन से मसनूई जहानत से फ़ायदा उठाना होगा। मुल्क में IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। IT बरामदात में इजाफा मईशत के लिए खुशाइन है। IT मसनूआत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे के बयान की तरदीद, कहते हैं कि कोई दावतनामा मौसूल हुआ और ना ही स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर काबिल एहतराम है, क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। बानी PTI ने सख्ती से हिदायत जारी की कि कोई ओहदेदार और कारकुन एक दूसरे के खिलाफ मीडिया या अवामी मकामात पर बयानात नहीं देंगे। पाकिस्तान ने इसराइल से ताल्लुकात से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसराइल से मुतालिक कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, ना ही किसी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर राबते में है। फ़लस्तीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती पोस्ट गुमराह कुन है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी कौस से तारीखी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म बरकरार है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में बड़ी कमी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। टैरिफ 45 रुपए 55 पैसे से कम करके 23 रुपए 57 पैसे फी यूनिट की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन पर 24 रुपए 44 पैसे कैप्ड मार्जिन हटाने की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 258 रुपए 65 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 8 रुपए 72 पैसे फी लीटर और डीजल पर लेवी 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका और चीन की एक दूसरे पर जवाबी वार। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को बोइंग तैयारे ना खरीदने के हुक्म दे दिया। कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। ट्रंप की जानिब से चीनी अशिया पर आयद 145% टैरिफ आयद किया गया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। चीन डील के लिए तैयार है या नहीं, बॉल चीन के कोर्ट में है। लबनानी सदर का हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर जोसेफ ओन ने कहा, लबनान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में आए। हिजबुल्लाह नई जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। हथियारों की तहवील से मुतालिक लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात किए जाएंगे। हम हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं, लेकिन हम लबनान में खाना जंगी नहीं चाहते। अमेरिका ने इसराइल को मजीद बम और हथियार भेज दिए। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक अमेरिका से 6 तैयारे, बम, गोला बारूद और दीगर हथियार लेकर इसराइल पहुंच गए। हथियार की फराहमी ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा है। इसराइल तवील अरसे से मशरक़ वुस्ता में अमेरिका का इत्तेहादी और असला हासिल करने वाला मुल्क है। जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और कई दूसरे मुल्क भी इसराइल को हथियार फराहम करने वालों में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक कुछ ऐसे वर्कर्स जिनके पास दस्तावेजात नहीं, वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं। अमरीकी महकमा हुकूमती इस्तेदादकार ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का डाटा जमा करना शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फलस्तीन के मामले पर मुजाहरा करने वाले तमाम अफराद का भी डाटा जमा किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी। छठे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए। फखर जमान 76, टेलर मिचेल 75 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में कराची किंग्स की पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और इरशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की नवीद सुना दी। आज से 20 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी।